The Ahmedabad Advertising Circle Association's talk show saw participation from several stalwarts of the media and advertising world. Bharat 24's Chief Business Officer Manoj Jagyasi made a special appearance on this occasion. During the event, he shared several key insights related to TV and advertising. The Ahmedabad Advertising Circle Association AACA hosted a special speaker panel on Saturday, 11th April in Ahmedabad, bringing together some of the leading names from the media industry. The session featured Manoj Jagyasi, Chief Business Officer of Bharat 24, as a key panelist. Joining him on the panel were Basant Rathore, Senior Vice President, Strategy Jagran Prakashan Limited, Yatish Maharishi, CEO ENIL, Radio Mirchi, Jayesh Yagnik, CEO, Moms Outdoor Media Solutions, and Dr. Kaushal Sanghvi, Director, Commerce, UK. The session was moderated by Dr. Santosh Patra, Associate Dean Academics, MICA. The event commenced with the individual 20-minute presentations by each panelist, during which they shared the insights on the current relevance and future direction of various media platforms. The experts spoke extensively on television, radio, outdoor, digital transformation, and evolving role of social and consumer ecosystems in advertising. During his address, Manoj Jagyasi emphasized that television continues to remain a highly relevant medium, noting that audiences still consume TV content for an average 3 hours and 50 minutes daily. He further highlighted that television and digital are not competing platforms, but complementary mediums that together strengthen brand communication strategies. In a moderated panel discussion, Dr. Santosh Patra steered the conversation beyond individual media channels and encouraged participants to view them as enablers rather than isolated platforms. The discussion focused on how communication should be centered around the message and the consumer impact, rather than being limited by the medium itself. Speaking on the changing dynamics of marketing investments, Manoj Jagyasi observed the significant rise of e-commerce. He remarked that while essential services such as milk delivery once reached consumers directly at their doorstep, e-commerce has now fundamentally transformed consumer behavior and brand outreach strategies. He explained that if a brand plans to spend 100 rupees on marketing, nearly 50 to 60 rupees is now allocated towards e-commerce platform registration, visibility, and strengthening digital presence, underlying the growing importance of digital commerce in reaching consumers effectively. Manoj Jagyasi also stressed that the real power of media lies not in the platform itself, but in its ability to deliver the right message to the right audience in the most effective manner. According to him, this evolving perspective is set to shape the future of advertising and media strategies in the years ahead. मैं चाहूँगा मैं आपको कुछ भी बताऊं टीवी के बारे में या ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में। गुजरात ने जो 30-40 ब्रांड दिए हैं इंडिया को, आप निरमा की बात करें, वॉशिंग पाउडर निरमा, आप फॉग की बात करें, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, सिम्फनी है, जायडस है, कायम चूर्णा है, लॉट ऑफ ब्रांड्स। आई थिंक ये ब्रांड इंडिया को आप सबने दिए हैं। तो मैं चाहूंगा अगर आप सब खड़े होकर अपने लिए ताली बजाएं तो बड़ा मजा आ जाएगा चालू करने। खड़े होकर ताली बजाएं कृपया आप अपने लिए। ऑल ऑफ यू कैन स्टैंड एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ, इट विल बी गुड फॉर यू बिकॉज दिस इज व्हाट यू गाइस हैव डन फॉर ऑल ऑफ अस सिटिंग देयर इन दिल्ली एंड मुंबई। एंड ये तालियां आपके लिए है क्योंकि आप लोगों ने खड़ा किया है जो भी खड़ा किया है। एंड आप प्लीज बैठ सकते हैं, अपने लिए ताली बजा के बड़ा मजा आता है, कभी करके देखिएगा, मैं अक्सर करता हूं अपने लिए। मुझे बताया गया है कि 10 मिनट में बोल दीजिए, तो मैं फटाफट कोशिश करूंगा जितना मैं कवर कर पाऊं कवर करने की कोशिश करूंगा। सो गुजरात एंड टीवी एडवर्टाइजिंग, जैसा मेरे पहले पैनलिस्ट ने भी बताया कि उनका ताल्लुक भी गुजरात से किसी न किसी तरीके रहा है, तो मैंने भी गुजरात में कुछ समय गुजारा है। जितने भी एजेंसीज वाले बैठे हैं इनके साथ कभी न कभी बातें हुई हैं, क्लाइंट जितने बैठे हैं, तब भी हम जाके यही बोलते थे कि टीवी खरीदो, अभी भी यही बोलते हैं कि टीवी खरीदो। फर्क ये है कि इतने सारे लोग एक साथ मिल गए तो
तो इतने सारे सेल्स कॉल से बच गया मैं आज कि मैं इकट्ठे आप लोगों का एड्रेस कर पा रहा हूँ. सो अभी टीवी को लेके बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, क्योंकि मैं जब आया यहाँ पे तो मेरे को एक जेंटलमैन से पूछा मैंने कि बिजनेस आपका कैसे चल रहा है. तो उन्होंने गुजराती में मुझे एक बात कही जो मुझे दिमाग में रह गई. उन्होंने बताया कि जिंदगी में रस न थी, धंधा में कस न थी, जाऊ छे स्वर्ग में पण अने कोई बस न थी. तो ये लाइन में याद आ गई. और किसी ने कहा कि इच्छा दुखनी माँ छे साहब, कितनी इच्छाएं रखेंगे उतना दुख की प्राप्ति होती है. क्योंकि पहले मुझे कहा गया, जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, आई ऑल्सो स्टार्टेड विद रेडियो रेड एफएम इन मुंबई. जब मैं फिर टीवी में आया वहां से, तो मुझे लोग बार बार यही कहते थे कि यार टीवी खत्म हो रहा है. फिर बहुत बाद में लोग बोलने लगे कि प्रिंट खत्म हो रहा है. फिर अभी हमें वापस कहा जाता है कि डिजिटल विल टेक ओवर. मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है इंडस्ट्री में. आई थिंक एवरी मीडियम विल थ्राइव एंड थ्राइव. ओनली थिंग दैट हाउ यू विल रीइन्वेंट योरसेल्फ. आप अपनी स्टोरी किस तरीके से जल्दी चेंज करते हैं. आपने देखा होगा, उससे पहले मेरा एक एवी चला, गेम चेंजर विद एमजे. ऑल माई लाइफ वी बीन अ बिजनेस लीडर्स, रेवेन्यू और मैनेजमेंट संभाला है. मैं कैसे स्क्रीन के सामने आ गया, मैं छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ आपको, वेरी स्मॉल स्टोरी. आजकल आपने देखा होगा कि पॉडकास्ट का जमाना है. हर कोई पॉडकास्ट देख रहा होता है. 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के पॉडकास्ट. अभी एक 4 घंटे का पॉडकास्ट आया था जो लोगों ने बहुत दिल से देखा, जो जोमेटो के फाउंडर थे. तो मुझे बताया गया कि क्रिएटर इकोनॉमी कितनी बड़ी हो गई है इंडिया में. पॉडकास्टर ऐसे भी हैं जो साल के 150-200 करोड़ रुपए बना रहे हैं. जो एक टीवी चैनल 200 करोड़ बनाने जाए तो शू कहिए, खून निकली जाए, तुम्हारा खून निकल जाता है एक तरीके से. तो ये पॉडकास्ट इंडस्ट्री इज बिकमिंग सो बिग. तो इट्स ऑल अबाउट आप किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने बिजनेस में. क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, नोबडी नोस. आई थिंक दिस इज व्हाट बसंत नायरवाल जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, कि किसी को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है. कोई यहाँ पे आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ कि कल आप ये कर लोगे तो धंधा विल ग्रो फास्टर एंड ऑल ऑफ दैट. आई कैन ओनली टेल यू एंड पिच यू कि बॉस टीवी बहुत अच्छा है, टीवी में पैसे डालते रहो. दैट आई विल टेल यू फॉर श्योर. बट द फैक्ट कि आने वाले दिन, अगर आप टीवी के लिए भी बात करो, मैं टीवी के 2-3 फिगर्स आपको बताने की कोशिश करता हूं. आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पहले पैनलिस्ट ने भी टीवी या ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बात करी. मैं आपको टीवी के बारे में 2-4 क्विक पॉइंट दे देता हूं कि कितने चैनल, अबाउट 900 चैनल हमारे बीम हो रहे हैं, 900+. आप ये डेटा से देख सकते हैं. उसमें आप बाइफिकेशन भी दिया है, कितने पे चैनल है, कितने फ्री डिश है. 381 के आजू बाजू फ्री डिश चैनल्स है. ये फ्री डिश चैनल क्या है, क्या हो रहा है, इसके रिवोल्यूशन अगर आप देखें, छोटे गांव देहात में आप आज भी जाके देखें, 1 स्क्रीन हाउस होल्ड होते हैं, घर में एक ही टीवी होती है. मैं आपको और भी आगे नंबर बताऊंगा. लगभग 14 करोड़ घर ऐसे हैं इंडिया में, आज भी वहां टीवी नहीं है. सिंगल स्क्रीन हाउस होल्ड की बात तो दूर की बात है. तो वो डेटा भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो समझने के लिए कि टीवी किस तरीके से पेनिट्रेट हो रहा है और टीवी को किस तरीके से देखने की जरूरत है आपको. तो ये नंबर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से. मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं कि मेरे समय की कमी है. अब ये डेटा देखिए 2024 का, आप कॉलम में जाके देखेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएगा कि किस तरीके से पे टीवी ड्रॉप हो रहा है और फ्री टीवी ग्रो हो रहा है. जब मैं फ्री टीवी की बात करता हूं तो क्या आता है, लार्जली फ्री डिश आता है. उसके नंबर्स आप देख सकते हैं कि इट्स बीन ग्रोइंग. मैंने टोटल टीवी हाउस होल्ड की बात करें 2024 के कॉलम में जाए. हाउएवर आई वांटेड कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता, बट मैं कोशिश करूंगा जो मुझे समय दिया गया है उसका मैं सम्मान करूं और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं. जैसे मैंने बताया था आपको, टोटल टीवी डार्क होम्स, आप आखिरी में कॉलम देखें 140 है मिलियंस. जो 14 करोड़ घरों में अभी भी टीवी नहीं है. अगर आप देखेंगे 330 मिलियंस मीन्स 33 करोड़ अगर आप नंबर देखें टोटल इंडियन हाउस होल्ड है. अगर आप उसको 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 130-135 करोड़ की आबादी इसमें झलकती है आपको. टोटल टीवी हाउस होल्ड की बात करें तो लगभग 19 करोड़ टीवी हाउस होल्ड हैं जिन घरों में टीवी है. आप इनको इंटू 4 कर लें, घर में एक घर में 4 लोग भी मान लें तो आपको समझ में आएगा 77 से 80 करोड़ लोग टीवी को देख रहे होते हैं अमूमन. अब सी टीवी की बात हो रही थी उससे पहले कि सी टीवी किस तरीके से ग्रो हो रहा है. अगर सी टीवी आप सबको पता होगा, कनेक्टेड टीवी कहते हैं उसको. कनेक्टेड टीवी का मतलब होता है इंटरनेट से आप कंज्यूम कर रहे होते हैं कोई भी चैनल, उसको सी टीवी करते हैं. एंड
2024 के बाद का जो डेटा 2026 का लेटेस्ट डेटा आया है, which I was reading it and I thought I'll just put it across for you guys also, which is about 129 million. CTV is growing very, very fast. And that's the number that one should look at it. क्योंकि जिस तरीके से CTV ने लैंग्वेज और पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है, वो देखने लायक है, जो आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूं. अब मैं टीवी वर्सेस डिजिटल की बात कर रहा हूं, क्योंकि डिजिटल के बारे में बहुत कुछ लोगों के मन में डर है. जितनी भी एजेंसीज जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं, उनका ट्रस्ट आज भी प्रिंट में, खासकर अहमदाबाद में हमने देखा है. टीवी में काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं. क्यों सोचते हैं? उसके मल्टीपल कारण हैं, जो ऑफलाइन मैंने बहुत बार बात करने की कोशिश भी करी है आप सबसे. मन में एक ही डर होता है कि टीवी के लिए हम बिल्ड करते हैं, कोई दूसरा एजेंसी बॉम्बे दिल्ली वाला आके पिच करके ले जाता है हमारी मेहनत को. विच इज अ फैक्ट ऑल्सो, आई गेस, जो आप सबका स्ट्रगल है. हमने बहुत बार कोशिश करी कि इस चीज को कैसे एड्रेस करें. बट मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग अच्छे से इस मीडियम को समझ के काम करने की कोशिश करेंगे तो टीवी कैन डू रियली रियली वंडर फॉर यू. बिकॉज जितने भी ब्रांड गुजरात से गए हैं, आप देखें फॉक, विनी कॉस्मेटिक का एग्जांपल देता हूं मैं. आई बीन वर्किंग विद देम वेरी वेरी क्लोजली. एक ऐसा ब्रांड है जो टीवी से ही खड़ा हुआ और टीवी से ही बड़ा हुआ. वो टीवी के अलावा कहीं और कुछ एडवर्टाइजिंग किया नहीं. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम्स एज वेल. उनसे 10 बार मैंने भी सवाल पूछा कि व्हाई डोंट यू लुक एट अदर मीडियम्स ऑल्सो, टू दीपम भाई एंड दर्शन भाई. और उनका अंदाज टीवी में एडवर्टाइज करने का बड़ा निराला है. आई थिंक यहाँ जितने ब्रांड ओनर्स बैठे हैं उनको भी मैं ये सीक्रेट अगर बताना चाहूं तो मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए आपको. वो एक ऐसा एडवर्टाइजर है इंडिया का, मे बी अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जो माल, जो डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले जो भी वस्तु आप खरीदते हैं उनकी, फॉक डिओड्रेंट या व्हाइट टोन पाउडर या व्हाटएवर, उससे पहले वो एडवर्टाइज करना चालू कर देते हैं. वेयर एज जितने भी एफएमसीजी ब्रांड ओनर्स हैं, आप उनसे जाके बैठिए. बिकॉज आई ऑल्सो वर्क विद हिंदुस्तान लीवर बिगिनिंग ऑफ माई कैरियर. जब तक ब्रांड प्लेस नहीं हो जाता मार्केट में, 3-4 महीने का प्रोसेस साइकिल होता है, तब तक कोई एडवर्टाइज नहीं करता है. आपके शहर के अहमदाबाद के दीपम भाई, दर्शन पटेल, आप उनको देखिए, माल जाने से पहले एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाता है. उनका कहना यही है कि मेरा सेल्समैन जब जाए ऑर्डर लेने के लिए तो उसको बोलना ना पड़े कि मैं क्या बेचने आया हूं. वो कहता है मैं फॉग देने आया हूं आपको. सो ये भी एक एनालॉजी है जो चल रही है. उसके चक्कर में आपने देखा होगा कि पारस फार्मास्यूटिकल बना, फिर विनी कॉस्मेटिक बना, और 2 बार उन्होंने कंपनी कितनी बड़ी बनाई हम सबको पता है. दैट्स वन एग्जांपल, ग्रेट एग्जांपल ऑफ दीपम भाई. आई गेस उनके लिए एक ताली बंदनी चाहिए कि द वे ही इज बीन डूइंग इट, एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, व्हाट दे डू इट. अब मैं आपको बात कर रहा था कि पेनिट्रेशन की. एक सवाल जो मुझसे हमेशा अमूमन पूछा जाता है, खासकर जितने भी लोग टीवी में काम करते हैं और पर्टिकुलरली न्यूज. जब मैं यहां आया, मेरे पुराने जानने वाले एजेंसीज वाले हैं, कुछ पूछे उससे पहले मेरे से सवाल पूछते हैं कि ईरान में शू थसे, ईरान में शू थयो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को क्या हुआ. आप ट्रस्ट लेवल में आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं. लाइक बंगाल इलेक्शन में क्या होने वाला है, मोदी साहब शू कर से, उनका ट्रस्ट क्या है न्यूज वालों पे. इट्स नॉट बिकॉज ऑन मी, दे नो दैट आई वर्क विद न्यूज चैनल. मे बी आई मे बी नोइंग थिंग्स विच अदर गाय वुड नॉट बी नोइंग इट. तो मेरे से सवाल आके पूछते तो ये ट्रस्ट दिखाता है आपको टीवी एज ए मीडियम पे. अब मैं डिजिटल के बारे में बात कर रहा था आपसे. अगर आप देखें कि अमूमन आज भी जो लोग कहते हैं कि टीवी इज डिक्लाइनिंग, पीपल आर नॉट वॉचिंग टीवी एंड ऑल दैट, आप देखें पीछे स्क्रीन में तो आज भी डेली 3.5 घंटे से प्लस लोग टीवी में खर्च कर रहे हैं. टीवी में समय आज भी 3.5 घंटे से ज्यादा देख रहे हैं. वेयर इज डिजिटल, स्टिल आप नंबर देख सकते हैं, 1 घंटा 50 मिनट का है आज भी. स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि आप कोई भी ब्रांड की ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाते हैं तो आप बनाते हैं टीवी के द्वारा. जब आप वो जिंगल बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है, दैट्स हाउ यू बिल्ड द ट्रस्ट. और डिजिटल उसको एम्पलीफाई कहता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी मीडियम सही है, खराब है, एंड ऑल ऑफ दैट. इट्स अबाउट वी एज ए इंडस्ट्री लीडर्स, ऑल ऑफ अस टुगेदर. अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक दिस विल वर्क. It's as important when I drive down to my work, I still listen to radio, okay? I still in the morning I read those newspaper which I was talking to Vasant a while ago. तो ये सारी चीजें तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, and I think we, all of us, whoso was running their media outlets, we know that very well.
जैसे मैंने पहले किया कि व्हाट इज द राइट क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन इज दैट टीवी इज स्टिल रिलेवेंट. और टीवी और डिजिटल की जो डिबेट है, खासकर जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, वो उसका आंसर बहुत क्लियर है कि दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया. जैसे मैंने बताया कि टीवी की रीच क्या है. टीवी की रीच इज वेरी वेरी हाई, 745 मिलियन. आप नंबर पढ़ सकते हैं पीछे स्क्रीन में, किस तरीके से टीवी बढ़ रहा है और किस तरीके से और टीवी बढ़ेगा आने वाले दिनों में. और हम रूरल ग्रोथ की बात कर रहे थे कि आज भी छोटे शहरों में आप जाके देखें तो बहुत सारे बेहतरों घरों में, जो मैंने पीछे स्लाइड्स में बताया कि आज भी सिंगल टीवी हाउस होल्ड है. आज भी परिवार साथ में बैठ के टीवी देख रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव मोबाइल फोन ऑन देयर हैंड. आज भी जो परिवार के साथ बैठ के आपको मजा आता है ना, आज भी अगर आपको समय मिलता होगा तो आप अगर टीवी में क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सीटीवी के थ्रू देख रहे हैं, किसी के भी थ्रू देख रहे हैं, व्हेन यू सिट डाउन विद योर फैमिली और मे बी सन और योर डॉटर, देयर इज अ फीलिंग ऑफ सिटिंग टुगेदर इज स्टिल रिलेवेंट इन टीवी. कंटेंट की बात कर रहा था कि आज भी जो कंटेंट बन रहा है, आप पीछे जो नंबर देख पा रहे हैं मेरे, 96% ऑफ इंडियन कंटेंट आज भी टीवी के लिए ही बन रहा है. पहला वहां से डिसेमिनेट होता है, उसी कंटेंट को रिसाइकल करके डिजिटल भी चला रहा है, उसी कंटेंट को रिसाइकल करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं. आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. यूट्यूब अपने समय समय पे अपने एल्गोरिदम चेंज करता रहता है, खासकर न्यूज के लिए. क्यों चेंज करता है? क्योंकि यूट्यूब को भी पता है कि एक ही कंटेंट अलग अलग तरीके से रिसाइकल होके एक न्यूज चैनल वाला या एक कंटेंट क्रिएटर चला रहा है. दे ऑल्सो अंडरस्टूड दिस वेरी वेल कि कंटेंट तो एक ही बन रहा है और बन रहा है टीवी के लिए. मैं जो टीवी में बना रहा हूं अपने न्यूज चैनल में, वही डिजिटल में भी डाल रहा हूं ना, डिफरेंट मैनर ऑल टुगेदर. तो कंटेंट बन रहा है टीवी के लिए. पहले जो नंबर आप देख रहे हैं 2 लाख प्लस आवर्स का कंटेंट आज भी टीवी के लिए बन रहा है, विच इज अबाउट 96%. वहीं से डिसिमिनेट हो रहा है. The way he also spoke about attention economy on TV and other medium is very very clear. डिजिटल में हाई टारगेटिंग, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, टीवी में हाई अटेंशन, हाई ट्रस्ट है. ट्रस्ट के बारे में बात करी मैंने बहुत सारी, क्रेडिबिलिटी के बारे में मैंने बहुत सारी बात करी. अब कंज्यूमर कहाँ खड़ा होता है इस सब चक्करों में? कंज्यूमर कैसे देख रहा है इस मीडियम को ऑल टुगेदर, ये हमको समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा. टीवी ऑब्वियसली आपकी दिमाग में एक मेमोरी बना देता है. अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, एक किसी एड को देखते हैं या किसी इंटीग्रेशन को विद इन शो में देखते हैं, तो आपके दिमाग में मेमोरी बन जाती है.